Myself, Dr. Anurag Kumar, Associate Professor, ABS College, Ghaziabad. Today I will discuss about the topic role of government in business environment. There are four roles of government in business, which we divide in four parts: regulatory role, promotional role, entrepreneurial role, and planning role. Role of government in business. In the regulatory role, government role in business extend from entry into business to final results of a business, the reservation of industries for small scale licensing system, regulate the entry, regulation of products, promotional activities. Means government regulates many of the industries. Government approves license for various trades. As you know, there are various regulatory bodies to regulate the business, to regulate the industry. As we know, there is a RBI who regulate the banking business. There is a IRDA, Insurance Regulatory Development Authority, who regulate the insurance companies. SIDBI, SEBI, who regulates the all stock exchange functioning. These are the bodies. These are the government basically work as a government agents who regulate the all business. They, these authorities, these regulatory bodies provides the various rules and regulations under which all companies have to work accordingly. There is a special laws for various industries. There is a separate law for insurance industry, banking industry. We have also the company law which governs all companies. Role of government in business में ही government regulation of the economy may be broadly classified into direct control और indirect control. डायरेक्ट कंट्रोल में अब देखिए इसमें फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी है जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है whether in the form of direct tax or indirect tax, import duty, export duty जो गवर्नमेंट लगा रही है वो एक तरह का इनडायरेक्ट तरीका है गवर्नमेंट को बिजनेस का कंट्रोल करने का. गवर्नमेंट को अगर किसी इंपोर्ट को डिस्करेज करना है तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है. एक्सपोर्ट ड्यूटी को अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इंकरेज करना है तो बहुत सारी एक्सपोर्ट ड्यूटी को गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर देती है. जैसे अभी एयर स्ट्राइक हुई थी तो जब रिलेशन ख़राब हो गए थे हमारे और पाकिस्तान के तो इंडियन गवर्नमेंट ने 200% तक इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी. तो जो इंडियन बिजनेसमैन थे वो पाकिस्तान से गुड्स इंपोर्ट करना उनको बहुत महंगा हो गया था क्योंकि 200% इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती. तो इतना महंगा गुड इंडिया में कौन खरीदता. तो ये एक तरीका होता है इम्पोर्ट को डिस्करेज करने का. अगर इसी तरह जो आपका डायरेक्ट कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के अंदर आता है. जो गवर्नमेंट लाइसेंसिंग इशू करती है, गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती है वेरियस इंडस्ट्रीज़ के लिए. तो जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है जो रूल्स हैं वो काफ़ी सिंप्लीफाई हैं, जिससे वो इट मीन्स वो गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाह रही है एज़ कम्पेयर टू द अदर इंडस्ट्री. ठीक है, तो जिस इंडस्ट्री के लिए वो लाइसेंसिंग काफ़ी ईजी कर रही है, रूल्स को सिंप्लीफाई कर रही है, तो इट मीन्स गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाह रही है. तो ये एक तरीके हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. नेक्स्ट इज प्रमोशनल रोल. Promotion role of the government assume greater significance in countries like India, where infrastructure is inadequate and entrepreneurial activities is scarce. The government set up infrastructure projects like power generation, roads, finance, transport. The government also set up institutions for providing training and guidance for setting up industries like DIC, NISBUD, NIC, SDO, CEDO, and EDI. Also provides the fiscal and monetary incentives for setting up the industries. Means जो
जो कंट्रीज थोड़े से डेवलपिंग है, डेवलपिंग कंट्रीज में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है बिजनेस को सेट करने के लिए, बिजनेस के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, क्योंकि जो इंटरप्रेन्योर्स हैं वो इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, सेल्फ रिसोर्सफुल नहीं है कि वो सारे काम खुद कर लें। इसलिए गवर्नमेंट की हेल्प, गवर्नमेंट का कोऑपरेशन बहुत रिक्वायर्ड होता है डेवलपिंग नेशंस के लिए, लाइक इंडिया। इसमें इंडिया आपको गवर्नमेंट रोड्स प्रोवाइड करेगी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बेसिक एमिनिटीज़ जो भी हैं, ट्रांसपोर्ट, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे बनाए हैं गवर्नमेंट ने जिससे हम एंटरप्रेन्योर स्किल सिटीजन्स की डेवलप कर सकें। जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, DIC, निस्बट, यहाँ पे बहुत सारी स्किल सिखाई जाती है बहुत नॉमिनल चार्ज पर या फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बहुत सारी फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, जैसे मुद्रा योजना के अंदर गवर्नमेंट बहुत सारे फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आप अपना कोई इनोवेटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। छोटी छोटी स्किल जैसे मोबाइल रिपेयरिंग स्किल के लिए आपको एक छोटा सी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। आपको आटा पीसने की मशीन लगानी है तो वो कैसे चलानी है, उसकी जो स्किल है, उसकी ट्रेनिंग है, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। बहुत सारी जो लोअर लेवल में जो वुमेन्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है जिससे वो भी छोटा बिजनेस कर सकें, वो भी अपना कुछ मनी अर्न कर सकें। तो ये सारी संस्थाएं गवर्नमेंट की तरफ से करे जा रहे हैं। Entrepreneur role, government mixed economy like India, government also plays the role of entrepreneur by setting up and operating business and bearing the risk. Number of factors have contributed to the development of public sector, such as social political factors, dearth of private entrepreneurship, unprofitable sector, prevention of exploration of consumers. ठीक है, बहुत सारे कारणों की वजह से डेवलपिंग नेशंस में पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट अपने हाथ में बहुत सारे बिजनेस लेती है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप की कमी होने के कारण जो बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं प्राइवेट के यहाँ, तो उनमें वो अनप्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, वो सही से काम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जिससे लोगों को दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, कंजम्पशन नहीं आ रहा, प्रॉपर गुड्स अवेलेबल नहीं मिल रहे लोगों को, कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट हैं उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो रिसोर्सेज की कमी है। ये सारी वजह से पब्लिक सेक्टर को अपने अंडर में बहुत सारे बिजनेस लेने होते हैं, जो जैसे अपने यहाँ पेट्रोलियम, रेलवे, आर्म्स, ये सब गवर्नमेंट के अपने अपने कंट्रोल में है। ठीक है, जिससे लोगों को ये सारी सुविधाएं मिलती रहें, कंजम्पशन लोग करते रहें जो ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये एक गवर्नमेंट का एंटरप्रेन्योर रोल है जो गवर्नमेंट निभा रही है एज एंटरप्रेन्योर फॉर various industries. The government play a very important role also in the make optimal resources of utilization of scarce resources by directing uh, various plans such as Niti Aayog, various trade policies. Role of planning by the government means गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट बना रखे हैं, बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है गवर्नमेंट ने, जिसके थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेट करती है बिजनेस, गाइडलाइन इशू करती है बिजनेस, जैसे कंपनीज एक्ट है, ट्रेड IRDA है, RBI है, SEBI है, इनके थ्रू गवर्नमेंट ने ट्रेड पॉलिसी है, एग्जिम पॉलिसी है। ठीक है, तो ये सारे आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं कि कैसे सब बिजनेस को काम करना है। These plans provide the guidelines for the growth and expansion of industries and the economy in general. It also earmarks priority sector like education, agriculture, hospital, etc. These are some benefits which the government must provide to the businessman for the industrial development. First point is become self-sufficient. Means those industries which requires a huge capital like heavy engineering, petrol, fertilizer, chemical, and which are the basis for other industries. Government must investment in these industries to provide the material to other industries.
reduce cost of production. Okay, government must try to reduce the cost of production of for the business. For this, government must provide some training institutes and business schools uh, which provide the training to the business owners about the process, about the use of the technology. There are various entrepreneurship institutes who provide the skill to the small businessmen, and they are also providing some financial aid to the small businessmen. Next is provide for the shortage of capital and manage the workforce. For the purpose of macroeconomic development, the and to eradicate the unemployment, that state should adopt the simultaneously labor and capital intensive industries, जिससे कि हम अपना जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम कर सकें, कंजम्पशन बढ़ा सकें और अपनी ग्रोथ कर सकें. नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एंड प्रमोट एजुकेशन. Government must investment in the human capital and highly productive in the underdevelopment countries. Underdeveloped country require technicians, doctors, lawyers, teachers, engineers, and the like who will contribute positively towards the increasing the flow of services, thereby accelerating the tempo of whole industrial development. गवर्नमेंट को मीन्स ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उनको हायर करना चाहिए, जो फाइनली कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट एग्रीकल्चर. गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर सपोर्ट के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, जो कि इसके लिए गवर्नमेंट को करती भी. गवर्नमेंट बहुत सारे लो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करती है, बहुत सारे लोन माफ़ भी करती है, बहुत सारी फाइनेंशियल एड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. ठीक है, ठीक है. गवर्नमेंट को उनको बहुत सारी मशीन जो एडवांस टेक्नोलॉजी की फार्मिंग की मशीन है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए. ठीक है, एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए. देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूशंस सच एज नाबार्ड जो रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि हमारा मेजॉरिटी ऑफ द एरिया पॉपुलेशन डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, लेकिन इनका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो कम हो रहा है, सर्विस सेक्टर का ज़्यादा हो रहा है, तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए. नेक्स्ट इज चेक डिस्पैरिटी इन वेल्थ इनकम. ठीक है, जैसे जैसे वी आर गोइंग टू द प्राइवेटेशन, जो रिच मैन बिकम मोर रिच एंड पुअर पीपल बिकम मोर पुअर, सो जो बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है. इसके लिए गवर्नमेंट को जो हायर क्लास है उस पर ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए एज कम्पेयर टू द लोअर क्लास, सो दैट जो हमारे पुअर पीपल हैं वो अपना फूड का, शेल्टर का, हेल्थ सर्विसेज का प्रॉपर मैनेज कर सकें. सुटेबल मॉनिटरिंग फिजिकल प्रेजेंस. गवर्नमेंट को जो फिजिकल पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट की मॉनिटरी पॉलिसी है वो सुटेबल लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स लेती है रिगार्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज द रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई. गवर्नमेंट के बहुत सारे CRR, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इसके जरिए गवर्नमेंट और भी अदर ओपन मार्केट मेजर्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है. नेक्स्ट है प्रॉपर एलोकेशन एंड स्टेबलाइजेशन. इसमें गवर्नमेंट को एजुकेट करना चाहिए बिजनेसमैन को कि हाउ दे use the resources optimally, as the maximization of or optimization of resources is very essential. गवर्नमेंट को कुछ also set some priorities कि किस एरिया में, किस इंडस्ट्री में आपको कितना रिसोर्सेज यूज करना है. It is how much resources to allocate, where to allocate, when to allocate, how to allocate. It must be depend on the government priorities. Next is merit goods. The government must play a key role in the development of education and health. These are the merit goods: education and health. The government may have to control and plan their consumption, their price, their distribution, their allocation, their quality. Government also need to control demerit goods such as alcohol and tobacco.
नेक्स्ट पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, मीन्स गवर्नमेंट को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, transportation facilities by giving access to the trains and buses, water, electricity, financial institutions, banks, so that businessmen can do their all work with proper efficiency in a smooth manner. Next is minimizing insecurity. गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो इनसिक्योरिटी उनको मिनिमाइज करे, कोई टेररिज्म है तो उसको रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है, बाई क्रिएटिंग लॉ, ठीक है, जिससे कि बिजनेसमैन अपना जो बिजनेस है वो विदाउट एनी फेयर कर सकें। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज को मींस जो डिलेज होता है कोई फाइल पास करने में, कोई लाइसेंस इशू करने में, जो पहले 2-2 महीने 6-6 महीने लगते थे, अब तो कम समय लगता है, 1 वीक लगता है। सिंगल विंडो सिस्टम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, ठीक है। वो जो रेड टेपेजम था उसको रिड्यूस करना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज को रिड्यूस करना चाहिए। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड एड, गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट रिलेटेड एड प्रोवाइड करनी चाहिए सो दैट हमारा एक्सपोर्ट प्रमोट हो। बहुत सारी एग्जामेशन गवर्नमेंट ऑलरेडी दे रही है, ठीक है, उसमें और हमें इंक्रीज करना चाहिए। जो हमारे नॉन एसेंशियल गुड्स हैं उनको इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए सो दैट हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चरल फैक्टर्स टू बी मेड प्रो बिजनेस। जो हमारे इंडिया के स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं, जो बहुत सारे कस्टम्स हैं, बहुत सारे कास्ट सिस्टम हैं, उनको अगर कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं तो गवर्नमेंट को उसको रिड्यूस करना चाहिए बाय क्रिएटिंग लॉ, बाय क्रिएटिंग एक्ट,